Hi guys, how are you all? Today I am here to share what 10 answers I got from this book. It's a beautiful book. ये करीब 195 पेजेस की बुक है. तो अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको ये इस बुक के बारे में जानना है तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. और मैं इस बुक पे एक पार्ट 2 भी करने वाली हूँ, वो भी आप अगले वीक ज़रूर देखना. सो बिफोर वी जंप राइट इनटू द वीडियो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनो. Okay guys, so the first question is that why should your eyes be fixed on the journey and not the destination? Okay, let me answer it. So there was a story that they shared in this book that was like there was one boy who wanted to learn from this one great teacher who used to live far away. So he traveled all the way and then he went to him, and the first question he asked that great teacher when he met him was, how long will it take for me to become as wise as you? So the sage quickly replied, the teacher, he quickly replied that 15 years. So then he was like, 15 years? Oh my god, that's too long. I can't invest so much time in that. So what if I study like day and night and I study very hard and I give my heart and soul to it? So then he was like, 25 years. But he couldn't quite understand कि he's promising more time and more dedication to the goal, but the teacher is saying it will take more time. So then the teacher told him that if you have one eye fixed at the destination and only one eye is there with you to guide you on the way, how are you going to do it? So what we learn from this is that we should concentrate at the task at hand and not the whatever results or whatever, you know, like iske baad kya and wo kya. No. The second question is why stop for gas? Matlab, that means in the literal sense that why do you have to stop for petrol when you are driving? तो पेट्रोल डीजल क्यों भरवाना पड़ता है? अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो क्यों चार्ज करनी पड़ती है? आप क्यों चलाते ही नहीं रह सकते हो? क्योंकि that's how the mechanism is, and if you try to change it then you are going to face the consequences of it. मतलब अगर आप अपनी लाइफ में टू बिजी हो जाओगे काम करने में या whatever thing you are working on or you have to do, and मतलब अगर आप बोल रहे हो you don't have the time to go and walk on the grass, or you don't have the time to dance in the rain, or you don't have the time to do, you know, like these cute little things, then that means you don't have time to stop for gas. If you don't stop for gas, then what will happen? Eventually it will catch up with you. गाड़ी आपकी बंद पड़ जाएगी बीच में रास्ते में, फिर टो होगी, फिर वो वहाँ जाएगी और एंड में उसको गैस मिलेगा. तो गैस तो वो लेगी भैया, ऐसे दो या आप वैसे दो. One question that I really think of is that why do we sleep so much? I think it's because we don't have anything else to do. You know, like कोई और चीज़ में एक्टिवली अपना ब्रेन लगाओ, उससे अच्छा सो जाओ. You know, मतलब the people who rise with the sun have one thing in common, which is what they have a purpose. They have priorities. They have priorities set for the day, and not in an obsessive way, not in an unhealthy way. It's a very healthy way. Like, you know how monks are. Monks also have a routine and ritual and everything. Like, they do a lot of productive work throughout the day, but they are not workaholic. It's more gentle and more effortless and, you know, more soothing, you know. So if you are sleeping too much, then you have to think about it. Matlab, why? You must rise with the sun. I want to rise with the sun, because what I've read and what I've heard is that when you see the rising sun, तो आपकी बॉडी में भी वो सारी एनर्जी जो है, आप मतलब हम सब यूनिवर्स हैं. मेरे में सन है, आप में सन है. हमें हमारे जो चक्रास है, हमारा जो हमारे बॉडी का सन है, उसको एक्टिवेट करने के लिए वो देखना है. Then the fourth question is what is fatigue? क्या मतलब थका हुआ होने का? है मैं तो थक गई. क्या मतलब है इसका? क्यों होता है ऐसा? Why are we always tired? It's because पहले तो fatigue क्या है? It's a creation of mind. Do we know it? जो fatigue है, it dominates the lives of those people who are directionless. Let me give an example. For example, you are in office and you are doing whatever research work that you've been assigned to do, and you are feeling so tired and that you want to go home and कब बजेंगे 6 whatever. उसके बाद में आपको आता है कॉल आपके फ्रेंड का, और वो आपको कह रहा है कि अच्छा
जो भी कोई एक चीज़ जो आपको इंटरेस्ट करती है, आप वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या आज जाके वो करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, और इफ दे वांट टू शेयर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन देयर रिलेशनशिप विथ यू, मतलब एनीथिंग दैट हैज़ लिटिल बिट मसाला और लिटिल बिट दैट इंटरेस्ट यू, तो आपका ये जो फटीग है ये तुरंत भाग जाता है. मतलब यू आर नॉट टायर्ड एनी मोर, यू नो. कमिंग बैक टू इट, फटीग क्या है? इट्स अ मेंटल क्रिएशन. मतलब वो आपकी एक बैड हैबिट है. आपका माइंड आपको ऐसा सोचने पे करता है. जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या थोड़ा टीडियस है या जिसमें थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो तब आप थक गए हो. समझे आप मेरी बात? तो इसको हम कैसे बी एनर्जेटिक ऑल द टाइम इज़ बाय बीइंग इन द प्रेजेंट. अगर आपका मन फोकस्ड है राइट नाउ, अगर आप मेरा वीडियो ढंग से देख रहे होगे तो आप टायर्ड फील नहीं कर रहे होगे, आप मेरी बातों से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप इन द मोमेंट हो, आप सोच रहे हो, आप एक्टिव हो. पर अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आपको मेरे वीडियो में थोड़ा बोर हो रहा है, तो आप टायर्ड हो. सिंपल है. व्हाट इज़ फियर? फियर क्या है? मतलब ऑनेस्टली फियर जो है वो एक इमेजिनेशन है आपकी. वो मतलब इट्स अ नेगेटिव स्ट्रीम ऑफ इमोशंस दैट यू हैव क्रिएटेड. आई थिंक लाइक बॉर्डरलाइन प्रोक्रास्टिनेशन भी वही है. एवरी टाइम you have not done a task that you should have done because you were fearful और आपको डर लग रहा था, तो आपने क्या किया? इसी फियर में और थोड़ी आग डाली. आपको आपके फियर्स को कॉन्कर करना है और आपको आपकी लाइफ को कॉन्कर करना है. तो आप क्या करो? आप सबसे पहले तो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में लिखो. ठीक है? आप एक रिटन इन्वेंट्री बोलते हैं इसको, जो आपने लिख ली. ठीक है? फिर आप उसको समझो, आप सोचो कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है, व्हाट इज़ इट. आप अपने आप को वहाँ पे डायरेक्ट करो अपनी एनर्जी और ट्राई टू रिजॉल्व इट. अगर आपको लगता है कि वो मुझे पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ा ऐसा लगता है, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो यार, या कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर लो. मतलब जो भी है ना, उसको अटैक करो. परफेक्ट वर्ल्ड क्या है? अच्छा सोचो कि इफ़ इट वॉज द परफेक्ट वर्ल्ड तो आप क्या क्या करते हैं. मतलब सोचो, अगर हर चीज़ आपके फेवर में होती तो आप क्या करते? मैं बताती हूँ. मैं तो सुबह 9 बजे उठती हूँ और मेरे को हमेशा लगता है कि नहीं, मुझे 6 बजे उठना चाहिए, मुझे 5 बजे उठना चाहिए, मुझे 7:30 बजे उठना चाहिए, मुझे जल्दी उठना है. ठीक है? तो मैं जल्दी उठती. मैं मेरी फैमिली को, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा मतलब मैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती. मैं मेरे डॉग को और टाइम देती. मैं मेरा प्रेयर और मतलब अफर्मेशंस वगैरह अच्छे से लिखती और टाइम देके और माइंडफुली करती ये सब काम. मैं माइंडफुल ईटिंग और करती, और मैं एक्सरसाइज करती, मैं वॉक पे जाती, मेरे फ्रेंड्स को के साथ में और अच्छे होलसम मोमेंट्स लिव करती. और मैं लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम 0 करती, या मैं बुक्स पढ़ती और न्यू चीज़ें सीखती, डांस क्लासेस करती, या मैं ऐसे ही कोई बच्चों को पढ़ाती या कहीं वॉलंटियर करती. मतलब कितना कुछ है जो मैं करती. लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़. ठीक है? बट दिस इज़ द परफेक्ट वर्ल्ड. दिस इज़ द परफेक्ट वर्ल्ड. डिड यू हियर मी? दिस इज़ द परफेक्ट वर्ल्ड and I have a perfect life and so do you. We have full control over our lives and we have to have full control over our thoughts. We have the power to live our dreams. 7th question is, why should you change yourself before you change the world? तो इसमें एक बहुत ही प्यारी स्टोरी बुक में मैंने पढ़ी थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि इट मेक्स सेंस. तो like there was this father who was reading the newspaper and the kid, his son was like constantly, he wanted to play, so he was constantly like disturbing his father कि थोड़ा कभी नज कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है कि ये कर लो वो कर लो, यहाँ चलते हैं. तो फादर तो थोड़ा उसको पढ़ना था न्यूज़पेपर, तो उसने क्या किया, उसमें से एक पेज निकाला जिसमें ग्लोब की फ़ोटो बनी हुई थी वर्ल्ड की, और उसको ऐसे थोड़े पीसेस कर दिए उसके 4, 5, 10 जो भी करे होंगे, और मतलब उसको बोला कि भाई ये जो पीसेस हैं इसको पुट इट बैक टुगेदर एंड मेरे को ग्लोब फिर से दिखना चाहिए. तो फादर को लगा कि ठीक है अभी तो ये बिज़ी हो जाएगा, मतलब इट विल कीप हिम बिज़ी. तो फादर वापस से न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया. बट टू हिज सरप्राइज 10 मिनट 5 मिनट के अंदर ही बच्चा वापस आया और वो दिखाते पापा को कि उसने ये कर दिया. तो फादर बोलता है हाउ डिड यू मैनेज, ये कैसे कर लिया? तो उसने बोला पापा इसके लाइक
on the back side of that globe there was a photo of a man. तो जैसे मैंने मैन की फ़ोटो वापस लगाई, उसके पीसेस लाइक अ पजल वापस डाला, तो ऑटोमेटिकली ग्लोब सही हो गया. तो आप मेरी बात समझे, मैन की फ़ोटो वापस लगाना ईजियर था क्योंकि वो फ़ोटो थी, समझ में आता है कि अच्छा एक आँख के बाद यहाँ एक आँख आएगी या व्हाटएवर, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट. तो और ग्लोब तो नेचुरली मतलब कहाँ पानी है कहाँ क्या है, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट कंपेरेटिवली. तो उसने क्या किया, रिवर्स किया, उसने पहले मैन को साथ में लाया और देखो पीछे से क्या हो गया. दैट मीन्स जस्ट लाइक द स्टोरी, व्हेन यू चेंज योर सेल्फ ऑटोमेटिकली आपका जो वर्ल्ड है वो आपके फेवर में हो जाएगा. आपको मतलब अबंडेंट हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ जॉय सब आपकी लाइफ में फ्लो करेगा, क्योंकि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करोगे लोगों को बदलने में, आप उसमें से इतना भी टाइम अगर खुद को बदलने में इन्वेस्ट करोगे ना, कल्याण. ये 80 और 20 का जो क्वेश्चन है, मतलब हम अपना लाइफ में कितना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं. 80% टाइम जो जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल यू नो लाइक सिटिंग एंड स्पीकिंग टू योर फ्रेंड और यू नो लिसनिंग अबाउट कि अच्छा क्या ड्रामा है, क्या चल रहा है, या फिर मतलब जो भी हम पार्टी में जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं. तो हम जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो 80% हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़. जो एक्चुअली हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ 20% है. वो सिर्फ हम उतनी ही करते हैं जैसे यू नो लाइक द एक्टिविटीज़ दैट विल एक्चुअली ब्रिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ. फॉर एग्जांपल लर्निंग न्यू थिंग्स एंड स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर, trying to connect with yourself, manifesting and journaling and praying and you know like all the things that actually matter, being present and things like that. हम जो 20% काम कर रहे हैं वो हमको 80% करना चाहिए और हमको देखना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके लाइक व्हाट टाइम विल एक्चुअली काउंट. व्हाट टाइम विल इट बी द गॉसिपिंग वाला 80% जो टाइम है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन स्मोक रूम्स वेरेवर व्हाटएवर, या जो 20% काम कर रहे हैं हम, जो हम अच्छा कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ्स पे, हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोगों की लाइफ्स पे, हमारी फैमिली की लाइफ्स पे गुड इम्पैक्ट कर रही है. वो जो चीज़ें हैं, क्या इन द लॉन्ग रन क्या चीज़ें हमको बेनिफिट कर रही हैं, आप बताओ. इट्स द 20%. तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जो भी ऐसे एनलाइटेंड सोल्स हैं वो बहुत प्रायोरिटी ड्रिवन है. तो हमें भी प्रायोरिटी ड्रिवन होना चाहिए. तो आप भी प्रायोरिटी ड्रिवन होइए, मैं भी हो रही हूँ. अपना 80% टाइम जो है हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करो और 20% अगर आपको चाहिए तो जो भी. व्हाट इज़ द डेथ बेड मेंटालिटी. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. क्यों? बिकॉज लाइक एवरी डे इफ़ यू वेक अप एंड यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि व्हाट विल आई डू दिस इज़ माई लास्ट, तो आप हर एक बारे में सोचो कि हाउ विल आई बी अराउंड माई फैमिली, हाउ विल आई बी अराउंड द पीपल आई डोंट नो, अराउंड स्ट्रेंजर्स, अबाउट विद माई फ्रेंड्स, विद योर क्लोजर फ्रेंड्स, विद whoever, your colleagues, your clients, like what is the impact that you want to leave in this world, you know. If you ask yourself this question every day that what will I do if this is my last, तो आप हर चीज़ हर जो काम करोगे इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से करोगे, इतना जेस्ट के साथ, इतने स्पिरिट के साथ करोगे ना, इट विल चेंज योर लाइफ. जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ऐसे पुट ऑफ कर दी हैं कि अच्छा कर लेंगे, कर लोगे, आप अपने आप को, जैसे मैंने बताया, आप वो 20% चीज़ों पे अपना 80% फोकस करोगे. The last question that I have is that can you change your life instantly, like spontaneously, you know कि ऐसा एक YouTube वीडियो देख लिया और फिर okay now this is the new me. Spontaneously आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो अगर आप अपने कोर से, अपने एकदम सोल एंड हार्ट आप किसी चीज़ में डाल दो तो आप वो कर सकते हो. It can happen in the blink of eye. तो So if you decide in this very moment that no, I am going to change myself, I am going to change my world, I am going to change my life, तो you can do it, है ना. So इसी के साथ let's end this video and I hope that I've given you some motivation जो आप actually जाके use करें और अपनी life को spontaneously जाके बदलें. I hope this was helpful and I'm going to be coming very soon, I mean next week with the second part which is going to be very very enriching. को आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या टाइप का कंटेंट देखना है, आपको कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो शायद मैं आपके लिए रिव्यू कर सकती हूँ. लाइक लेट मी हेल्प यू गो लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस because that's the purpose of life, a life of purpose. And please go like, share and subscribe to my channel right now. See you, bye.